Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing good and let's continue with our unit wise questions marathon series. Today we are going to solve unit number 7 questions. Okay, so let's begin, but before that, if you have not yet joined my Telegram channel, do follow it, do join it, and also subscribe to my YouTube channel for more such content. And apart from that, if you have not yet watched unit number 1 to 6 questions from this series, then please do check out the playlist of 50 question series. You will get all the questions unit wise over there. Okay, so now let's begin with our first question. So question says, given below are two statements 1 and 2. Statement 1 says, portfolio can provide teachers and researchers with information relevant to the cognitive process. And statement 2 says, engaging students more deeply in instructional and assessment process, portfolio benefits students learning. So क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 से है, यानी कि पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट से. तो दो स्टेटमेंट दी गई है. यू हैव टू वेरीफाई वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. पोर्टफोलियो can provide teachers and researchers with information relevant to the cognitive process. Now cognitive process यानी कि संज्ञानात्मक विकास, thinking, right? So question पूछता है, क्या पोर्टफोलियो टीचर्स या रिसर्चर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में हो, से रिलेवेंट हो? तो yes, this is true. Statement 2 says, engaging students more deeply in instructional and assessment process, पोर्टफोलियो बेनिफिट स्टूडेंट्स लर्निंग. सो पोर्टफोलियो और क्या करता है, स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट को कितने इंस्ट्रक्शनल कितने असेसमेंट प्रोसेस के माध्यम से हम रेलेवेंट देख सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. हैंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, next question. Which one of the following is self-determined learning? Now, there is a huge catch in this question. There are different types of learning types. There is pedagogy learning style. There is andragogy method of learning. There is heutagogy. Now, what are the basic difference between these two? Pedagogy is very easy. Pedagogos. Peda यानी कि child. So, pedagogy यानी कि to lead a child या फिर teaching a child. Okay, art and science of teaching a child, that is pedagogy. When it comes to andragogy, andra is adult. So to teach an adult is andragogy. Now what is heutagogy? Heutagogy means self. Okay, self-determined learning. Now in andragogy, in case of andragogy, here also self-learning is a point. एंड्रागोजी में भी सेल्फ लर्निंग आता है, बट दैट डजंट मीन कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग हम एंड्रागोजी से लगाएंगे. एंड्रागोजी का मतलब होता है अडल्ट लर्निंग. ओके, सेल्फ डिटरमाइंड अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो वो आपकी ह्यूटागोजी होती है, जहाँ पे आपके ही ऊपर होती है आपकी लर्निंग का पूरा भार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी. अगेन ये यहाँ से इस बार के वेस्ट बंगाल सेट में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक. पढ़ के जाइए. ये यूनिट नंबर 7 जो टॉपिक है ना, जो यूनिट है, ये आपका फेवरेट टॉपिक होना, फेवरेट यूनिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ही सिंपल से आते हैं और सिलेबस से बाहर नहीं आता है, और सिलेबस भी काफ़ी छोटा सा प्यारा सा है. सो मेक श्योर कि यूनिट नंबर 7 को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ. ओके, सो डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज अकाउंट्स फॉर कॉग्निटिव, metacognitive, action oriented. Now let's understand what is the basic difference between cognitive and metacognitive. Whenever there is cognitive or cognition is the noun form of it. Now cognition or cognitive means thinking related. Okay, thought related, thinking related, of anybody's, of any idea of someone else, anything, any information. If you think about it, that becomes your cognitive approach. Okay, now whenever there is a metacognitive, it means higher of what? Thinking about thinking is metacognitive. Okay, thinking about thinking. Who's thinking? Your own thinking about your own thinking becomes metacognitive. So because there is learner autonomy यानी कि सेल्फ, खुद के बारे में बोला गया है, तो अकाउंट फॉर कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग में आएगा. इसके अलावा खुद की थिंकिंग भी आएगी और एक्शन ओरिएंटेड भी अप्रोच ये होगी. तो ये सारे ही यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट बैठते हैं. सिंपल, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस.
प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से देख के जाओ। इसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। इसके बाद अगर ये यूनिट 7 मतलब ये यूनिट सीरीज कंप्लीट हो जाए हमारा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाने का ट्राई करूँगी। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कौन सी स्पेसिफिक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं वहीं से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगी। तो हम क्या करेंगे कि सपोज 4-5 ईयर को एनालिसिस करके इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपका काम सिंपल करने के लिए वो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो डू हेल्प मी विद दैट। और चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर R.H. डवेज टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो डोमेन और टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, ये तो हमने ब्लूम के नाम से पढ़ी थी। ये भाई साहब कौन है? तो ब्लूम ने दी थी 3 टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने दी थी अपनी टैक्सोनॉमी जिसमें आए थे 3 डोमेन। कौन कौन सी? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, इमोशन रिलेटेड, एंड तीसरा है साइको मोटर डोमेन या फिर कोनेटिव डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है। सो इन तीनों को वापस रिवाइज किया था, ये अराउंड 1956 1960s के अराउंड दिया था ब्लूम ने। इसके बाद इनको रिवाइज किया था, हर एक डोमेन को रिवाइज किया गया था। और ये जो तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, इसी को रिवाइज करने वाले थे हमारे R.H. डवे, जिन्होंने कहा था कि 5 स्टेप होते हैं साइकोमोटर डोमेन में। क्या क्या? इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इंट्रोड्यूस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, ये पूरा ही आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत यूजफुल हो जाती है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे हम भर भर के पढ़ लेते हैं सारी ये चीजें, राइट। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आती है हमारी सेकेंड लेवल। 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। We have 3 levels of teaching. What are those? अरे मेरे से straight line बनने में थोड़ी दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। Yes, 3 levels we have. First level, first or the lowest level is the what? Is the memory level. Thoughtless level. This is thoughtless level. ठीक है, thoughtless. कोई थिंकिंग यहाँ पे नहीं होगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आप बस इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लो, इतना। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, द सेकेंड वन, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, यहाँ पे थॉट आती है। एंड द लास्ट वन, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। दिस इज द हाइएस्ट वन एंड इट रिक्वायर्स हॉट्स। व्हाट इज हॉट्स? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, यहाँ पे आपको थिंकिंग अपनी बहुत ही हाईएस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मेमोरी का भी यूज होगा, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग का भी यूज होगा, और यहाँ पे आप नॉलेज क्रिएट भी कर सकते हो। सो दैट इज रिफ्लेक्टिव। क्लियर? सिंपल। सो अंडरस्टैंडिंग इज द सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड by Morrison. Okay. Now you tell me that there are 3 levels: memory, understanding and reflective. Reflective was given by Biggie and Hunt. ओके, नाउ यू टेल मी मेमोरी लेवल किसने दी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। क्रैथवोल्स अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन, अगेन ये रिवाइज्ड डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन यानी कि द सेकंड डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका जो आपका सही स्टेप है, सही सीक्वेंस है, दैट इज R² VOC। नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है, R² VOC। और इसमें भी आप बोल सकते हो कि मैम R² है, पहले रिस्पॉन्डिंग आएगा, पहले रिसीव आएगा। पहले रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हो? रिस्पॉन्ड यानी कि कोई स्टिमुलस तो होना चाहिए ना। पहले आप कोई स्टिमुलस देखोगे तभी तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स तो कभी आ ही नहीं सकता। पहले क्या आएगा? रिसीव करना। Okay, first you will receive and then according to that stimulus you will respond. So receiving, respond, then comes valuing, organizing and characterizing. So these are the 5 correct sequence. चलो आगे बढ़ेंगे। Holistic rating scale assess what? Holistic rating scale, what do you understand by holistic? What do you understand by holistic? Holistic is the complete. Holistic means comprehensive. It's the complete. It takes account of everything.
Okay, so holistic rating scale will have several dimensions together. Views of the final product as a set of interrelated tasks contributing to the whole. One score provides an overall impression of ability on any given product. So the correct answer here is all of the above. Holistic means everything that comes under this. Okay, next question, Galloway's system of observation. Now again, very important, interaction analysis. There are two topics given in your syllabus. First is क्या लिख रही हूँ मैं फर्स्ट इज फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस एंड अनदर वन इज गैलोवे. मैंने दोनों को मिला के फैलोवे लिख दिया था, डोंट माइंड. ओके, सो फ्लैंडर्स वन इज verbal behavior of teacher, but when it comes to Galloway, he said that both verbal and non-verbal are very, very important. Both verbal as well as non-verbal interaction or behavior is important in a classroom environment. So Galloway system of interaction, encouraging and restricting, ये कहाँ से आते हैं? IDER आता है, ठीक है. So direct indirect ये आता है आपका verbal, एंड एनकरेजिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग ये आता है आपका नॉन वर्बल, ठीक है. और ये दोनों ही आपके गैलोवे सिस्टम में आता है. सो इट इज नॉन वर्बल इंटरेक्शन के अंडर आएंगे, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन अजम्पशन ऑफ चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगेन सेम क्वेश्चन आपका बना है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों ही होते हैं, बट ये जो नॉन वर्बल होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, okay, during interaction. So non-verbal communication can be more effective during interaction in the classroom as per Charles Galloway system of analysis. ठीक है. Next question. List 1, list 2, the two lists have been given and you have to match them. So memory level, understanding level model, reflective level, यानी कि टीचिंग लेवल्स आपको बताई गई है एंड थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉजी फोर्थ पॉइंट है, और आपको कौन से किसने क्या लेवल दिया था ये आपको मैच करनी है. सो मेमोरी लेवल अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के है, दिस वाज गिवन बाय हर्बर्ट. All right. Understanding level is given by Morrison. Reflective level is given by Biggie and Hunt, and theory of andragogy was given by Malcolm Knowles. Okay. So correct answer becomes 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4 and 1. Clear? Simple, very easy questions. Next question. This is the 11th questions. Hopefully 10th questions आपको पसंद आए होंगे. आगे के 10 questions करते हैं. चलिए. So for diagnostic test, the test difficulty is what? Low, moderate, high, very high. डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए टेस्ट डिफिकल्टी कैसे होनी चाहिए? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. देखो, चाहे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पूछे, टाइप ऑफ असेसमेंट पूछे, इवैल्यूएशन पूछे, इन केस टेस्ट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऐसे आपकी टर्मिनोलॉजी पूछे तो उनमें डिफरेंस है. बट अगर आपको टाइप्स पूछे तो टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं है. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू डायग्नोस्टिक असेसमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि मैम हमने तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ा था, एग्जाम में डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया. डायग्नोसिस का मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है. आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेस्ट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस बताओ, इसके आगे कुछ ना लगाते हुए, तो वो अलग बात है, वो अलग क्वेश्चन है. बट अगर आपको पूछे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, या फिर अगर आपको पूछे डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, तो दोनों का मतलब सेम ही बनेगा. डायग्नोसिस का और कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है. इतना हम समझेंगे. सो फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट द टेस्ट डिफिकल्टी विल बी व्हाट? डायग्नोसिस का मतलब ये होता है बच्चे की स्ट्रेंथ एंड क्या, स्ट्रेंथ के साथ और क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जांचना. क्यों करेंगे हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की जांच? ताकि वीकनेस के हिसाब से बच्चे को क्या मिल सके, बच्चे को हम रेमेडी प्रोवाइड कर सके, बच्चे की सहायता कर सके उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, है ना. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में टेस्ट डिफिकल्टी जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए. अगर हाई बना देंगे तो कोई भी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, है ना. सो लो होनी चाहिए टेस्ट डिफिकल्टी में डायग्नोस्टिक लेवल. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एम्फसाइजेस डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग. रिलेटिव लेवल का क्या मतलब समझते हैं हम? जब भी रिलेटिव होती है कहीं ना कहीं हमारे में आती है कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब हम क्या समझते हैं? कंपैरिजन में कंटेंट आएगा? नहीं. कंटेंट रेफरेंस यानी कि कंटेंट के बेसिस पे टेस्टिंग. ऑब्जेक्टिव रेफरेंस यानी कि प्रायर हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे, एम सेट कर रखे, उसके हिसाब से बच्चे की टेस्टिंग नहीं. क्राइटेरियन का मतलब होता है स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हमने
सेट कर रखा है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है, उसके बेसिस पे बच्चे की टेस्टिंग, तो ये भी नहीं। रिलेटिव लेवल यानी कि कंपैरिजन जो हमारी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है हमारे पास ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी रिलेटिव लर्निंग को हम लोग टेस्ट करें कि ये बच्चा जो है ये 100 आउट ऑफ 100 लाए तो इसकी फर्स्ट रैंक है, ये बच्चा जो है इसको 98 आया है तो इसकी सेकेंड रैंक है, ये बच्चा जो इसको 80% आए हैं थर्ड है ये, ठीक है। इस तरीके से जब हम लोग कंपेयर करते हैं, रैंक लगाते हैं, तो उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहेंगे और यही होती है रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग की डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, याद रखेंगे कि हम क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव कंटेंट में कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं है, सिर्फ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में ही क्योंकि कंपैरिजन होती है, दैट इज वाई वी विल कॉल इट अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डैश इज एन एफिशिएंट वे टू असेस पोर्टफोलियो। ना व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो होता है कि बच्चे की क्या सक्सेस लेवल है, बच्चे की क्या इम्प्रूवमेंट है, उसका एक कंप्लीट क्या बोल सकते हैं, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट, राइट, उसका एक फ्रेमवर्क। सो दैट इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को असेस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ओरल एग्जामिनेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू। क्वेश्चनर, नो नीड। ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन से भी नहीं होगा, वी नीड प्रूफ, सम काइंड ऑफ थ्योरेटिकल प्रूफ, सो दैट इज योर रूब्रिक्स, ठीक है। रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक होता है क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया, यहाँ पे भी क्राइटेरिया बेस्ड होती है, तो रूब्रिक एक एफिशिएंट वे है टू असेस द पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, assessment of learning needs, collaboration and self-evaluation, these are the components of what? Self-directed, self-defined, self-determined या फिर self-derived. Now question simple है, options काफ़ी complex है ना? मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड, कोलैबोरेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये किसके कॉम्पोनेंट्स है? तो देखोगे क्वेश्चंस में जितने भी आपके टर्म दिए हैं, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग करना, असेसमेंट करना, कोलैबोरेट करना, सेल्फ इवैल्यूएट करना, ये सारे ही ना वर्ब है, यानी कि आप खुद काम कर रहे हो, जहां पे आप खुद फंक्शन कर रहे हो वो आएगा आपके सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि आप खुद मैनेज कर रहे हो, खुद मॉनिटर कर रहे हो अपनी लर्निंग प्रोसेस को, खुद ही असेस कर रहे हो खुद की लर्निंग नीड्स को, कोलैबोरेट कर रहे हो, खुद ही सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो, तो ये सारे आपके सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। डैश स्कोर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर लोकल नॉर्म्स। What do you understand by local norms? अब देखो नॉर्म देके एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू द आंसर कि द करेक्ट आंसर इज टेनाइन स्कोर, बट लोकल नॉर्म्स में हम परसेंटाइल रैंक का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स? नॉर्म्स बेसिकली होती है कि अगेन वो कुछ सेट ऑफ पीपल होंगे या फिर एक ग्रुप होगा, उनके बीच ही में परस्पर आप टेस्टिंग करके रैंक लगा रहे हो, ठीक है, दैट इज लोकल नॉर्म्स, उसी की स्कोरिंग बता रही है। नो परसेंटाइल तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आता है, ऑलराइट। स्टेनाइन स्कोर क्या होता है? इट इज मच सिमिलर टू परसेंटाइल ओनली। यहाँ पे क्या होता है? सेट ऑफ 9 होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ 9 होते हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कोर किया जाता है, तो ये होती है स्टेनाइन स्कोर। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, परसेंटाइल कैन ऑल्सो बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डैश इन नेचर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में डायग्नोस्टिक पढ़ लिए, इसके अलावा फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है, प्लेसमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी इवैल्यूएशंस होती है। जहाँ पे हमारी फॉर्मेटिव आएगी, इट इज मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ओनली, यानी कि ये कंटिन्यूअस होगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग होगी, यहाँ पे बच्चों को इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिया जाएगा, ऑलराइट। इसीलिए इसको हम डेवलपमेंटल बोलते हैं, और जो डेवलपमेंटल होगा वो जजमेंटल तो नहीं होगा, है ना। अगर जजमेंटल बोलते तो ये हमारा क्या होता? समेटिव होता, जो कि एंड में होता है, और फॉर्मेटिव जो होता है ये हमारी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, हमारी कंटिन्यूअस चलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेडागॉजी इज कंसर्न्ड विद व्हाट? पेडागॉजी क्या होती है? सो पेडागॉजी जो आई है, ये शब्द बना है पेडागोगोस से, यानी कि टू लीड अ चाइल्ड, ऑलराइट। तो पेडा यानी कि चाइल्ड। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, यहाँ पे बोला है कि कंसर्न्ड विद व्हाट होता है। सो चाहे पेडागॉजी हो चाहे एंड्रागॉजी हो, ये दोनों ही हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, और इसका मीनिंग ये होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, ओके। सो दैट इज वाई इट इज अ
teaching method. Both of these are teaching methods. All right, next question. What is the correct sequence of learning outcomes related to affective domain from लोअर टू हायर लेवल? अगेन ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी अभी हम लोग इसको बस सॉल्व करके आए हैं. R²VOC है ना, अफेक्टिव डोमेन को. तो यहाँ पे R² सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग. अभी पढ़ा मैंने कि रिस्पॉन्डिंग तो पहले आ ही नहीं सकता, पहले रिसीव करोगे, स्टिमुलस बनेगा तभी रिस्पॉन्स आएगा. तो 1 2 VOC 3 4 एंड 5th इज कैरेक्टराइजिंग. तो ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं है. सो 2 1 4 3 2 1 4 and 3 should be the correct sequence. Absolutely. Next question. आज का लास्ट क्वेश्चन. Which type of assessment is most likely to engage students in active learning? एक्टिव लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ असेसमेंट सबसे बेस्ट मानी जाती है? ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल? बिल्कुल ही नहीं. ट्रेडिशनल कभी भी बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट इफेक्टिव तो हो ही नहीं सकता. एक्टिव लर्निंग तो यहाँ पे होती ही नहीं है ना. मल्टीपल चॉइस क्विजेस नहीं, ये भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी नहीं. परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, परफॉर्मेंस है, बच्चा खुद करके सीखेगा. ये बेस्ट तरीका है बच्चे को एक्टिव बनाने का, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने का. सो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट शुड बी द मोस्ट effective one to engage students in active learning. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम यूनिट नंबर 7. होपफुली यू लाइक दिस क्वेश्चंस. अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चंस आते कहाँ से होते हैं? तो ये क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से मैं लाती हूँ. सेट के क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके रिसेंट लेवल ईयर में आए हैं, के सेट से, MS सेट से. यहाँ से मैं क्वेश्चंस आपकी यूनिट वाइज लेके आती हूँ. सो होपफुली यू लाइक दिस क्वेश्चंस. फॉर मोर सच वीडियोज, फॉर मोर सच यूनिट वाइज क्वेश्चंस, डू फॉलो द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना. और कोई भी, जो मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर यूनिट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता दीजिएगा. आई विल ट्राई कि ये जो यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाए, ये सीरीज़ हमारा ओवर हो जाए, उसके बाद हम लोग वही करें. हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद लाएंगे. यूनिट वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद. इसके अलावा नया कोर्स मेरा आ चुका है, दैट इज़ टारगेट बैच फॉर जून 2025. ऑलराइट. अच्छा, इस बैच की खास बात क्या है? इस बैच की खास बात ये है कि आपको ये बैच संपूर्ण इंग्लिश में मिलेगा. ऑलराइट. तो अब आप बोलोगे कि मैम जो इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता वो क्या करेंगे? तो वो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैच यानी कि सक्षम बैच जो है उनको आप फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सक्षम बैच फॉलो कर लो या परीक्षा बैच फॉलो कर लो. परीक्षा बैच में भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा. एक्चुअली सक्षम बैच जो है ये मेरा इंग्लिश में कंटेंट है बट हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन है. बट ये जो टारगेट बैच होगा इसमें आई विल ट्राई, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस बैच से कि ये इंग्लिश में ही नोट और इंग्लिश में ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है. तो ऐसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलती है टॉपिक्स की इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो अवेलेबल हो जाता है बट इंग्लिश में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने सोर्सेज हैं नहीं, तो उनके लिए ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. सो इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दिस बैच देन डू कनेक्ट टू मी ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ओवर दैट. Okay, so hopefully you like this video, and if you did then please like it and also subscribe to the channel and also join my YouTube, join my Telegram channel and discussion group as well. I will see you in my next video very soon with new unit and new set of questions. Bye, take care and all the very best.